Good morning, everyone, and welcome to the class. We are doing the chapter New Centers of Power, and under this chapter, we have discussed about European Union, and in the previous class, we were discussing ASEAN, and we have discussed the three pillars of ASEAN: the ASEAN Security Community, the ASEAN Economic Community, and the ASEAN Socio-Cultural Community. And we have also seen that ASEAN has a vision for 2020, which was adopted in the year 1997 when it turned uh, 30 years old. And we have also we were discussing that in the foreign policy of India, ASEAN countries were not very much important during the Cold War era because India had very good relationship with Russia. So, India, we can say that in its foreign policy, India ignored the ASEAN countries because it was not in the need of these countries during the Cold War era. But when in 1991 the USSR disintegrated, so after that India changed. India made amendment in its foreign policy, and we see that India started to develop a good relationship with ASEAN countries. And in this regard, we have seen that India has done trade agreement with three of the Southeast Asian countries, that is Malaysia, Singapore, and Thailand. Okay, and during the prime ministership of Manmohan Singh, uh, he was prime minister from 2004 to 2014. During this period, a sincere effort was done to develop the relationship with ASEAN countries, and in this regard, we see that India has adopted Look East policy. Look East policy, it means that India started to give important place to this the Southeast Asian countries, जो ईस्ट की कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ इंडिया ने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया. दिस इज़ लुक ईस्ट पॉलिसी, एंड नाउ वी सी दैट since 2014, this Look East policy has changed into Act East policy. जो अभी तक सिर्फ देख रहा था इंडिया, अब उसने एक्ट करना स्टार्ट कर दिया है. एंड इन दिस अंडर दिस एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इंडिया हैज़ स्टार्टेड टू develop its economic interaction with the East Asian countries. East Asian countries में जापान भी आ जाता है, चाइना भी आ जाता है, और आसियान की कंट्रीज़ भी आते हैं, और कोरिया, साउथ कोरिया. तो इन सब कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने अपने रिलेशन को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दिया है. द कंट्रीज़ आर आसियान कंट्रीज़, China, Japan, ASEAN countries, and South Korea. ओके, तो इस तरह से इंडिया ने अपनी पॉलिसी में चेंज लाया है. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. और इसके अलावे हम ये भी समझेंगे कि इंडिया ने
फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी इन कंट्रीज़ के साथ, आसियान कंट्रीज़ के साथ किया है. एंड दिस FTA, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, इट केम इनटू इफेक्ट इन द ईयर 2010. और जब भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है तो इट डज नॉट स्टार्ट विथ कम्प्लीटली फ्री ट्रेड अग्रीमेंट. सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो ट्रेडिंग होती है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, उस पर जो ड्यूटी लगती है उसको धीरे धीरे कम किया जाता है. एक बार में ज़ीरो पे नहीं आते हैं, धीरे धीरे एक फेज्ड मैनर में उसको लोअर डाउन किया जाता है. तो इंडिया ने उसको भी स्टार्ट कर दिया है 2010 से इन आसियान कंट्रीज़ के साथ. तो इस तरह से ये इंडिया और आसियान के बीच का रिलेशनशिप हुआ. और अगर हम आसियान कंट्रीज़ को, आसियान को देखें तो आसियान का जो स्ट्रेंथ है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है. और आसियान का जो सबसे जो उसके लिए स्ट्रॉन्ग पावर है वो यही है कि ये बिलीव्स इन द पॉलिसी ऑफ इंटरैक्शन एंड कंसल्टेशन, है ना. नेगोशिएशंस, इंटरैक्शन, कंसल्टेशन, इन सब को ये इम्पोर्टेंस देता है. न सिर्फ अपने आपस में जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ, बल्कि जो अदर नॉन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ भी ये इसी तरह के इंटरैक्शन और डायलॉग्स और नेगोशिएशंस को इम्पोर्टेंस देता है. ठीक है. और ये भी हम देखेंगे कि जो आसियान है, ये सिर्फ आसियान ही एक ऐसी रीजनल एसोसिएशन है एशिया के अंदर जो कि एक पॉलिटिकल फोरम प्रोवाइड करती है, जहाँ पर कि एशियन कंट्रीज़ और जो मेजर पावर्स हैं, जो वर्ल्ड के मेजर पावर्स हैं, वो पॉलिटिकल और सिक्योरिटी मैटर्स को डिस्कस कर सके. दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ASEAN. So we have completed ASEAN. The organizations, the associations about which you have to study under this chapter is European Union. We have done that. This ASEAN, we have also done that. And now two more associations are left. The first is जो बचे हुए हैं उसमें पहला हम लोग करेंगे सार्क को, SAAR, सार्क एंड दिस ब्रिक्स. ये दो हमारे अभी बचे हुए. तो टुडे वी विल डू सार्क. South Asian Association for Regional Cooperation. So in order to understand SAARC, in order to understand South Asian Association for Regional Cooperation, first you will have to understand South Asia, कि South Asia क्या है, कहाँ पर है. और इसके बाद का जो आपका चैप्टर है ना, साउथ एशिया, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, उसका ही एक पार्ट था जो सार्क हम अभी जिसको हम चैप्टर 3 के अंदर पढ़ रहे हैं, है ना, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में पढ़ रहे हैं. ये सार्क एक्चुअली this topic in the original book belongs to the chapter contemporary South Asia. But हम इसको जो भी रीजनल पावर्स, जो भी we can say जो भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं जो कि आज के समय में एक बहुत ही पावरफुल सेंटर बन गए हैं, तो उनको सबको एक जगह रख दिया गया और इसीलिए हम सार्क को इसके अंदर पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ साउथ एशिया. तो साउथ एशिया के अंदर जो कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं उनमें इंडिया है. देन इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, जिसको हम ये साउथ एशिया वो पोर्शन है जिसको हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं.
जो कि एशिया के अदर पार्ट से सेक्लूडेड है बाय द geographical boundaries. Like north में हिमालय है, हिमालयाज इज देयर इन द नॉर्थ. देन ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, साउथ में इंडियन ओशन है, वेस्ट में अरेबियन सी है. तो इस तरह से ये जो नेचुरल जियोग्राफिकल बाउंड्री क्रिएट हो गया है, जो कि इस पोर्शन को जिसमें मेन कंट्री इंडिया है, इस पोर्शन को बाकी के अदर एशियन कंट्रीज से एकदम सेपरेट कर देता है. तो इसी को हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं. और यही हमारा साउथ एशिया है, जिसमें जो कंट्रीज़ इंक्लूडेड हैं वो इंडिया है. इंडिया के अलावे जो भी उसके नेबरिंग है, वहाँ से हम अगर इधर से स्टार्ट करते हैं, जो नॉर्थ वेस्ट में है, पाकिस्तान, देन नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इधर मालदीव्स. ये पूरा जो इंडिया के सराउंडिंग में जो नेबर है, उन सबको मिला करके ये साउथ एशिया हम इसको कहते हैं. ठीक है. आजकल हालांकि इसमें अफ़गानिस्तान और म्यांमार को भी इंक्लूड करने की बात होती है कि साउथ एशिया में अफ़गानिस्तान एंड म्यांमार आर ऑल्सो इंक्लूडेड. लेकिन हम अपने इस चैप्टर के अंदर साउथ एशिया में बस इन्हीं कंट्रीज़ को कंसिडर करेंगे. सो इंडिया, पाकिस्तान, then Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka and Maldives. So these are the countries of साउथ एशिया. ठीक है. और अब इन साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं, इनका भी ये एसोसिएशन है जिसको हम सार्क कह रहे हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. तो अगर साउथ एशिया के कंट्रीज़ में हम देखें तो पीस, देयर इज़ लैक ऑफ पीस. काफ़ी ये सेंसिटिव रीज़न बन जाता है बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. अगर साउथ एशियन रीजन का अगर मेन प्रॉब्लम हम देखें तो यही है कि यहाँ पर जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच का जो कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप है वही सबसे इम्पोर्टेंट है. और इस कारण ही हम कहेंगे कि ये पीसफुल एरिया नहीं है. यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं. न सिर्फ इतना, बल्कि हम अगर देखें तो जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ भी, इंडिया के जो अदर कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया के, उसमें भी इंडिया का रिलेशन जो है वो सबके साथ उतना सही नहीं है. खैर दैट इज़ अनदर मैटर, वो एक अनदर टॉपिक है जिसको कि हम लोग कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में डिस्कस करेंगे. यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो अगर साउथ एशियन रीजन को देखें तो इसमें जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच ही है. और ये मैटर और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो गया जब से दोनों कंट्रीज़, इंडिया एंड पाकिस्तान, बोथ द कंट्रीज़ बिकम न्यूक्लियर पावर्स. 1998 में जो न्यूक्लियर टेस्ट किया इंडिया ने मई में एंड देन अक्टूबर में पाकिस्तान ने, उसके बाद से दोनों कंट्री जो है वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर चुके हैं. तो इस एरिया की जो सेंसिटिविटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है. तो अब हम ये देखते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप तो है, लेकिन एफर्ट्स भी हो रहे हैं ताकि कंट्रीज़ के बीच में, जो साउथ एशिया के कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कोऑपरेशन डेवलप किया जा सके, उनके बीच में फ्रेंडली रिलेशन जो है वो डेवलप किया जा सके, ताकि इस पूरे के पूरे रीजन का डेवलपमेंट हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कि जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो इस बात के लिए एफर्ट्स होते हैं कि हमें हमारे बीच में
आपसी जो कोऑपरेशन और फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए, और इसी डायरेक्शन में कि जो साउथ एशिया की कंट्रीज़ हैं उनके बीच में फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव रिलेशंस होने चाहिए। इसी डायरेक्शन में हम देखते हैं कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस, ताकि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में कोऑपरेशन को डेवलप किया जा सके। ठीक है, हर फ्रंट पे, न सिर्फ इकोनॉमिक बल्कि कल्चरल, सोशल, हर फील्ड में, हर एस्पेक्ट में कोऑपरेशन को डेवलप किया जा सके। एंड ये जो सार्क है ये इट केम इनटू एक्सिस्टेंस इन द ईयर 1985। Okay, and we see that there it is an effort to bring cooperation to develop a friendly relationship between the member countries, but what we find that SAARC is not a very successful organization, बिकॉज जो यहाँ पर सार्क में कंट्रीज़ में जो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। जो भी मीटिंग्स होती हैं सार्क की उसमें इंडिया एंड पाकिस्तान की जो कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप है वो, जिसको कहेंगे, इट बिकम्स अ काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द in achieving cooperation between the member countries। तो अगर हम कहें कि सार्क को लाया तो इसलिए गया था ताकि फ्रेंडली रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया जा सके, कोऑपरेशन को अचीव किया जा सके, और ताकि पूरी की पूरी जो एरिया है साउथ एशिया की उसके डेवलपमेंट के एम को हम अचीव कर सके। बट एक्चुअली ऐसा हो नहीं पाया है, और इसके पीछे मेन रीज़न जो है वो इंडिया एंड पाकिस्तान ही है, और साथ ही साथ इसमें चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट है, जिसको कि हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ यही समझना है कि इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप के कारण इस साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इज़ नॉट अ वेरी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। इसने बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाया है। हालांकि एफ़र्ट्स हो रहे हैं, और एफ़र्ट्स का ही एक नतीजा है कि ये जो मेंबर्स हैं सार्क के, इन्होंने साफ्टा साइन किया है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा। इसका मतलब वही है कि जो साउथ एशिया के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में फ्री ट्रेड होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन द ट्रेड बिटवीन द मेंबर कंट्रीज। एंड व्हाट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन इन ट्रेड? क्या होता है ट्रेड में ऑब्स्ट्रक्शन? जो कस्टम्स ड्यूटी लगते हैं, है ना, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर जो कस्टम्स ड्यूटी लगते हैं, दे आर द ऑब्स्ट्रक्शन ऑन द ट्रेड। तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाना है, इसके लिए ही ये साफ्टा जो है इसकी स्टार्टिंग हुई है। और ये एक हम कह सकते हैं कि साउथ एशिया के जो सार्क है उसमें ये एक पीस और कोऑपरेशन का एक न्यू चैप्टर की स्टार्टिंग है। इट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर ऑफ पीस एंड कोऑपरेशन इन द सार्क, है ना। अगर हर कंट्री जो है, जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं सार्क के, अगर वो आपस में फ्री ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि ट्रेड की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगी, एंड दिस विल
ब्रिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा एफर्ट है ताकि कंट्रीज़ के बीच के कोऑपरेशन को बढ़ा करके हम पूरे रीजन का डेवलपमेंट कर सकें, है ना। ये अग्रीमेंट जो है वो 2004 में साइन हुआ। दिस अग्रीमेंट, साउथ एशियन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, इट वाज साइंड इन 2004. And it came into effect on 1st January 2006. ओके, तो 1st जनवरी 2006 से ये इफ़ेक्टिव हो गया। और इसमें हम ये देखते हैं कि साफ्टा का जो एम है वो यही है कि टैरिफ्स, जो ट्रेड टैरिफ्स है जिसको हम कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगने वाले टैरिफ्स हैं उसको लोअर डाउन किया जाए, नीचे लाया जाए, और नीचे लाते लाते वो यहाँ तक आ जाए कि बिल्कुल फ्री ट्रेड हो जाए। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है एंड इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव स्टेप इन अचीविंग पीस एंड कोऑपरेशन इन द रीजन। बट यहाँ पर फिर से एक प्रॉब्लम आती है, और प्रॉब्लम ये है कि जो साउथ एशिया है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एंड आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इन दोनों एसोसिएशन को हम अगर कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि आसियान इज़ अ वेरी वेरी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन. इट अचीव्ड cooperation among the member countries, and through this cooperation the whole region developed in especially in the economic terms. We are talking about economic terms only. बट अगर हम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन को देखते हैं तो इट इज़ अ फेलियर. ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया. साफ्टा का भी एफर्ट हो रहा है ताकि फ्री ट्रेड हो सके, लेकिन यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम आ रही. तो प्रॉब्लम का जो मेन रीज़न है क्यों आसियान बहुत इजीली अच्छे से कोऑपरेशन अचीव कर ले रहा है बट साउथ एशिया में कोऑपरेशन अचीव नहीं हो रहा है, इसके पीछे जो रीज़न मेन है वो ये है कि अगर हम साउथ एशिया की कंट्रीज़ को देखें, मेंबर कंट्रीज़ को देखें, तो साइज़ में सबसे बड़ी कंट्री कौन है? इंडिया है ना. पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सब छोटे छोटे एरिया वाइज, टेरिटरी वाइज अगर हम देखें इंडिया के कंपैरिजन में उनका जो टेरिटरी है वो बहुत ही छोटा है. तो ये जो साइज़ में इतना ज़्यादा डिफरेंस है, एक तो सेंट्रल पोजीशन है इंडिया की, उस पर से हर कंट्री से वो बड़ा है, न सिर्फ साइज़ में बल्कि पावर भी, पॉलिटिकल पावर भी हमारी बहुत ज़्यादा है अदर कंट्रीज़ की तुलना में अगर हम देखें तो ये जो डिफरेंस है ना, ये इस डिफरेंस के कारण क्या होता है, जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके मन में एक डर हो जाता है. इट इंस्टिल्स अ काइंड ऑफ फियर कि ये इतनी बड़ी कंट्री जो हमारी नेबर है वो हम पर रूल करना चाहती है, वो हमको अपने हिसाब से चलाना चाहती है, हमको डोमिनेट करना चाहती है. और यही रीज़न है कि सार्क सक्सेसफुल नहीं हो पाया. और साफ्टा जैसा जो एफर्ट है, जो कि जिसको कहा जाएगा कि बहुत ही अच्छा एफर्ट है कोऑपरेशन अचीव करने का, लेकिन यहाँ भी जो नेबर्स हैं इंडिया के, जो नेबर्स हैं उनको ये लगता है कि इट्स अ वे, साफ्टा इज अ वे फॉर इंडिया टू इन्वेड देयर मार्केट्स. इंडिया वांट्स टू डोमिनेट देयर मार्केट्स. अपने सामानों से इंडिया हमारे मार्केट्स को भर देना चाहता है, तभी ये फ्री ट्रेड वाला जो अग्रीमेंट है इसको इंडिया इतना बढ़ावा दे रहा है. नॉट ओनली दिस, उनको ये भी लगता है कि ये इंडिया जो है वो उनकी सोसाइटी और पॉलिटिक्स को भी रूल करना चाहता है. मतलब इकोनॉमिक पर्पस से वो हमारे इकोनॉमिक जो साफ्टा होगा
तो दैट इज़ ओनली इन द इकोनॉमिक रिस्पेक्टिव। इकोनॉमिक लाइफ में हमारे इंटरफेयर करके हमारी सोसाइटी और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम दोनों को वो इन्फ्लुएंस करना चाहता है ना, और इस तरह से अपना दबदबा बनाना चाहता है, हमें बुली करना चाहता है। ये दीज आर द फीलिंग्स, और इसी कारण से साफ्टा भी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं ये गलत है। इंडिया का ऐसा कुछ भी जिसको हम कहा जाए ऐसा इंटेंशन नहीं है। अगर साफ्टा सक्सेसफुल होता है, फ्री ट्रेड सक्सेसफुल होता है, तो इट विल लीड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द होल रीजन, नॉट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री ओनली। तो इंडिया जो है वो तो यही चाहता है कि ट्रेड हो फ्रीली, ताकि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं हर कोई आगे बढ़ सके, है ना। और जब हमारे बीच का इकोनॉमिक रिलेशन स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो दैट स्ट्रांग इकोनॉमिक रिलेशन विल प्रोवाइड अ काइंड ऑफ पॉजिटिव एटमॉस्फेयर टू सॉल्व द पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑल्सो। जो भी पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे अगर हमारा इकोनॉमिक रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इंडिया ये चाहता है कि हम अपने इकोनॉमिक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करें, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक मैटर्स में कोऑपरेट करें, ताकि जो पॉलिटिकल मैटर्स हैं वो अपने आप सॉल्व हो जाए। ऑब्वियसली अगर हमारे बीच में इकोनॉमिक रिलेशन स्ट्रॉन्ग है तो दिस स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिलेशन विल इम्पैक्ट द पॉलिटिकल रिलेशन ऑल्सो, एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ इंडिया। लेकिन इसको सही ढंग से नहीं समझा जाता है। और इतना ही नहीं, इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसे हैं लोग जिनका ये सोचना है कि साफ्टा से कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया पहले ही बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स जो हैं वो भूटान, नेपाल और श्रीलंका के साथ कर चुका है। तो 3 मेजर कंट्री के साथ आपका बायलैटरल अग्रीमेंट है, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। तो फिर साफ्टा इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि साफ्टा जैसी जो चीज़ें हैं उनको आगे आना चाहिए, उससे पूरे रीजन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। तो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ व्हाट वी फाइंड कि इंडिया पाकिस्तान के बीच का जो टेंस्ड रिलेशनशिप है, कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप है, दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर वी कैन से दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज़। अब हम ये देखते हैं कि दोनों ही कंट्रीज़ की तरफ से इस बात का एफर्ट हुआ है कि कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर किया जाए, कैसे टेंशन को मैनेज किया जाए, और पीस बिल्डिंग के लिए एफर्ट्स जो हैं वो दोनों कंट्रीज़ की तरफ से स्टार्ट हुए हैं। हालांकि हम नहीं कह सकते कि ये सक्सेसफुल है, क्योंकि ऐसे टॉक्स होते हैं, दोनों कंट्रीज़ के बीच डायलॉग्स होते हैं, लेकिन फिर से जो सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो जाती है। बट वी शुड नेवर लूज़ होप, है ना। दोनों कंट्रीज़ ने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं वो स्टार्ट कर दिया है अंडरटेक करना, ताकि जो रिस्क ऑफ वॉर है उसको कम से कम किया जा सके। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या हुआ? कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का मतलब हुआ कि दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, जो भी उनके आर्मी से रिलेटेड जो भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं सिक्योरिटी पर्पज़ से, उसको एक दूसरे के साथ शेयर करना। जब हम वैसी चीज़ों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो ये कॉन्फिडेंस बनाता है, और ये जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ वॉर। क्योंकि जब हमको एक दूसरे पर भरोसा है, एक दूसरे के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें जान रहे हैं, तो वहाँ पर वॉर होने का जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही कम हो जाता है। तो दोनों कंट्रीज़ ने इस डायरेक्शन मूव किया है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, और साथ ही साथ बहुत सारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, वो भी आगे आए हैं, ताकि इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में
एक अच्छे रिलेशन को इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। और इसके लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा सके, इसके लिए बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होते हैं, लिटरेरी फेस्टिवल्स टाइप ऑफ चीज़ों को भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि दोनों कंट्रीज़ अपनी जो बॉन्डिंग है उसको वो याद करके वो फिर से एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन में जा सके, है ना। और लीडर्स की मीटिंग्स भी होती रहती है, समिट्स होते रहते हैं, और इन समिट्स में यही एफर्ट किया जाता है कि एक दूसरे की जो चीज़ें हैं उसको हम समझें और जो प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन निकालें कि कैसे उन प्रॉब्लम्स को हम दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बस रूट्स स्टार्ट हुई लाहौर से इंडिया के लिए बस की जो स्टार्टिंग हुई, ये एक बहुत ही पॉजिटिव एफर्ट था कि जब लोगों का आना जाना होगा तो रिलेशंस अपने आप इम्प्रूव करेंगे, है ना। और न सिर्फ इतना बल्कि ट्रेड भी बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेड रिलेशन हम रखते हैं पाकिस्तान के साथ, क्योंकि ये इंडिया का ये सोच है और ये सही सोच है कि अगर इकोनॉमिक रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा तो दैट स्ट्रांग इकोनॉमिक रिलेशनशिप विल पेव द वे फॉर सॉल्विंग द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इस तरह से जो एफर्ट्स हैं वो हो रहे हैं। वीज़ाज़ भी अब इजीली मिल जाते हैं, पहले वीज़ा मिलने में बहुत, अगर इंडिया में पाकिस्तान का इंडिया के किसी यहाँ से पाकिस्तान के लिए चाहिए या पाकिस्तान से इंडिया के लिए चाहिए तो बहुत दिक्कतें आती थी, बट अब वो चीज़ें भी हो रही है। तो जो एफर्ट्स हैं वो हो रहे हैं, दोनों कंट्री की तरफ से हो रहे हैं रिलेशंस को इम्प्रूव करने का। ओके, तो अब ये एक जो इसका अंदर जो सब टॉपिक है वो हमारा बच गया है, उसको कल हम लोग डिस्कस करेंगे।